السلام علیکم۔ آج کی میری یہ سٹوری کسی کی زندگی پر بیتی ایک بہت خوبصورت سبق خاموش کہانی ہے۔ سٹوری شروع ہونے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کہانی وتھ شبنم کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن کو آن کر دے تاکہ آپ کو ملتی رہے تمام چینل اپڈیٹ۔ آپ میری اس سٹوری کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں۔ میری دوست شاہدہ کی شادی کو 12 برس بیت چکے تھے۔ جب اولاد کی خوشی اسے نصیب نہ ہوئی تو وہ بے حد غم زدہ رہنے لگی۔ کئی لوگوں کی منتیں کی اس نے، جن قریبی رشتہ داروں کے زیادہ بچے تھے اور تنگ تھے، ان سے کہا کہ ایک بچہ ہمیں دے دو، اس طرح اسے پالیں گے کہ آپ اس کی زندگی پر رشک کریں گے۔ مگر کوئی اپنا بچہ دینے پر راضی نہ ہوا۔ سچ ہی ہے نا، اولاد سے زیادہ بڑھ کر کوئی میٹھا پھل نہیں ہے۔ شاہدہ جب بھی مجھ سے ملتی ہر بار یہی دکھ بیان کرتی کہ ساری دنیا کی خوشی مل گئی ہے، مطلب ایسے طبقے سے الگ طبقے میں شامل ہو گئے ہیں۔ کاروبار میں میرے شوہر کو ہر سال لاکھوں کا منافع ہوتا ہے، سب کچھ بن مانگے مل رہا ہے، لیکن جو نعمت اپنے رب سے مانگتے ہیں وہ ابھی تک نہیں مل سکی ہے۔ میں اسے تسلی دیتی کہ اللہ سے اچھی امید رکھو، اس کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں، اللہ نے چاہا تو ضرور تمہیں بھی خوشی ملے گی، تمہاری مراد مل جائے گی۔ مگر اس کی تسلی نہ ہوئی۔ کہتی مجھے تو یوں لگتا ہے کہ ہم سے کوئی ایسی غلطی ضرور ہوئی ہے کہ ہماری دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ ہر بار اسے سمجھاتی کہ توبہ کرو شاہدہ، تمہاری مراد قبول ہونے کی یہ وجہ نہیں ہے۔ اللہ کے ہر کام میں مسئلے ہوتے ہیں جسے بندے نہیں سمجھ پاتے۔ سبھی کو سبھی کچھ نہیں ملتا، کسی کو ایک شے ملتی ہے تو کسی کو کوئی اور ہی، کسی کو خوشی ملتی ہے تو کسی اور کو دوسری خوشی ملتی ہے۔ انسان ہر حال میں صبر شکر سے کام لینا چاہیے۔ جب شاہدہ کی اسرار بھائی سے شادی ہوئی تو وہ ایک کمپنی میں معمولی سے ملازم تھے۔ ان کے والد کی وفات کے بعد وراثت میں خالی زمین ملی جو شہر سے کچھ دوری پر تھی۔ شاہدہ دعا کرتی تھی کہ اللہ پاک اس کی بھی دن پھیر دے۔ والدین کے گھر غربت دیکھی تھی تو اب شوہر بھی کچھ زیادہ آسنتا حال نہ تھا۔ اللہ نے شاہدہ کی دعا سن لی۔ کچھ عرصے بعد وراثت میں ملی زمین شہر میں آ گئی۔ اس کے قریب ہی ایک دوسرے پلاٹ پر کسی نے پلازا بنوایا تو کاروبار کو وسعت دینے کے لیے شاہدہ کے شوہر اسرار بھائی سے منہ مانگے دام ان کا پلاٹ خرید لیا۔ اسرار بھائی نے اس رقم سے کاروبار کرنے کی ٹھان لی۔ وقت کے ساتھ اللہ کی مہربانی سے کاروبار سیٹ ہو گیا، دن دگنی رات چوگنی ترقی کرتا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اسرار بھائی کروڑ پتی ہو گئے۔ شادی کے بعد 12 سالوں کے اندر شاہدہ ایک کروڑ پتی بزنس مین کی بیگم بن کر اپنی شاندار کوٹھی میں مستقل ہو گئی۔ اب اس کی زندگی میں کسی خواہش کی کمی نہ رہی، مگر وہ اولاد کی نعمت سے محروم رہی۔ وہ کہتی تھی یہ ہوتی ہے اللہ کی دین، جسے چاہے دولت دے، جسے چاہے عزت شہرت اور جسے چاہے اولاد۔ میرے شوہر کی ملازمت عرب میں ہو گئی تھی تو میں ان کے ساتھ وہاں چلی گئی اور پھر 6 برس تک شاہدہ سے نہ مل سکی۔ اب کی بار جب میں پاکستان آئی تو اسے ملنے گئی اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ایک 8 برس کی بچی اس کے ساتھ تھی جسے وہ اپنی بیٹی کہہ کر مجھ سے تعارف کروا رہی تھی۔ تمہاری بیٹی ہے؟ مگر تم تو، اس نے مجھے اشارے سے کچھ کہنے سے روک دیا۔ اس ملاقات کے بعد وہ ایک دن میرے گھر ملنے آئی اور بولی میں اپنی بیٹی کو اسکول چھوڑ کر آ رہی ہوں، جب تک اس کی چھٹی کا وقت نہیں ہو جاتا تمہارے پاس بیٹھتی ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ شاہدہ تمہاری بیٹی کب ہوئی؟ تم نے مجھ سے کبھی کوئی ذکر نہیں کیا۔ کہنے لگی میرے یہاں اولاد نہ ہوئی مگر اللہ نے ایک پیاری سی بیٹی مجھے عطا کر دی ہے۔ تبھی پھر اس نے مجھے یہ واقعہ سنایا۔ ایک روز جب میں بارش کے بعد ہلکی ہلکی ٹھنڈ بڑھ گئی تھی اور شام سرد ہو گئی تھی، میں اپنے بیڈ روم سے نکل کر بالکنی میں آئی اور سڑک پر نگاہ دوڑائی جہاں ٹریفک تھا اور اکا دکا لوگ چلتے دکھائی دے رہے تھے۔ شام کا وقت تھا لیکن سردی اور گہرے بادلوں کی وجہ سے رات کا سمے ہو گیا تھا، ابھی مغرب کا وقت نہیں ہوا تھا۔ اچانک میری نظر 2 لوگوں پر پڑی جو ساتھ چلتے
चले आ रहे थे। वह करीब आ गए तो देखा कि एक कमज़ोर सा मुफलिस आदमी था, जिसके हाथ में एक प्लास्टिक की थैली और दूसरे में एक नन्ही सी बच्ची का हाथ था। वह तेज़ी से चलने की कोशिश कर रहा था। यकीनन उसे रात होने से पहले घर पहुंचने की जल्दी थी। शायद उसे बारिश बरसने का डर था। मैंने उन दोनों को गौर से देखा। वह बच्ची तकरीबन 5 बरस की होगी। वह एक छोटा सा गुलाबी दुपट्टा से सर को ढाके हुए थी। दोनों ही नंगे पैरों से तेज तेज चलने की कोशिश कर रहे थे। बच्ची बड़ी दिक्कत से बाप के तेज उठते कदमों को साथ दे रही थी। मैं सोच में पड़ गई कि क्या इस गरीब बाप की इतनी भी औकात नहीं कि नन्ही सी बच्ची को जूते पहनाकर नंगे पैरों चलने की तकलीफ से बचा ले। मैंने अपने एक पैर से चप्पल उतारी तो फर्श की ठंडक जैसे जिस्म में उतर गई। बारिश से ज़मीन वैसे भी सर्द हो जाती है। ये तो सड़क थी जिस पर जगह जगह पानी मौजूद था और एक मासूम बच्ची उस पर दौड़ी जाती है। उफ मेरे अल्लाह, मुझे तो ठंड ज़्यादा महसूस होने लगी। मुझे तो झुरझुरी आ गई। क्या गुजर रही होगी इस बच्ची पर। जब मैंने अपने घर में झांका तो इसरार गाड़ी को गैराज में बंद करने जा रहे थे। तभी मैंने आवाज़ दी, कार को गैराज में ना ले जाएं, अभी मैं आ रही हूँ नीचे, मुझे एक ज़रूरी काम है। वह जहाँ थे वहीं रुक गए और हैरत से मुझे देखने लगे। मैंने एक कंबल उठाया और अलमारी से 2 शॉलें निकालकर मैं थोड़ी सीढ़ियाँ नीचे तेज़ी से उतरी और उनके पास जा पहुँची। क्या बात है, खैरियत तो है ना? हजरत अली, सड़क पर तक जाना है मुझे। ये कहते हुए मैं गाड़ी में बैठ गई। उन्होंने कोई मुझसे दूसरा सवाल ना किया और गाड़ी को सड़क पर ले आए। हाँ बोलो, किधर जाना है? बस सीधे चलिए। उन्होंने हुक्म की तामील की और दरमियानी रफ्तार से गाड़ी चलाते वहाँ पहुँच गए जहाँ वह गरीब बाप और बेटी पहुँचे थे। वह मुसलसल उसी रफ्तार से अपने सफ़र को जारी रखे हुए थे। ज़रा आगे जाकर वे दोनों एक गली में मुड़ गए जो दाएं जानिब कच्ची बस्ती की तरफ जाती थी। क्या हुआ भी क्यों उनका पीछा कर रही हो? इससे आगे गली ख़राब है, बारिश रुकी हुई है। आप कार को किसी मुनासिब जगह पार्क कर देना, मुझे इस आदमी से काम है। क्यों, क्या इसे पैसे देने हैं तुमने? यकीनन इसकी गुर्बत पर तरस आ गया होगा। हाँ, देखते नहीं कितनी सर्दी पड़ रही है और वह नन्ही सी बच्ची बगैर गर्म कपड़े पहने नंगे पाँव चलती जा रही है। हटो तो, इसकी फिक्र उनके माँ बाप को होनी चाहिए ना। तुम्हें क्या परेशानी है? इतने में हम उनके बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए। मैंने आवाज़ देकर उस आदमी को रोकना चाहा। वह ज़रा सा ठिठका और मुड़कर हमें देखा, इस बेयकीनी से कि जैसे हमने उसे नहीं किसी और को पुकारा हो। मैंने इशारा किया, इधर आओ। वह करीब आया तो मैंने कार की खिड़की से सर निकालकर कहा, भाई इतनी सर्दी में बच्चे को तुमने गर्म कपड़े क्यों नहीं पहनाए? ये बीमार पड़ सकती है ना। बीबी, सुबह जब हम घर से निकले तो उस वक्त इतनी सर्दी नहीं थी। घर कहाँ है तुम्हारा? वह सामने वाली आबादी में। उसने इशारा किया और आगे बढ़ गया, जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि वह गरीब ज़रूर है मगर भिखारी नहीं है। ज़रा इसके पीछे के घर तक तो चलिए ना। अरे पागल हो गई हो, वह कोई मज़दूर है, शायद अपने घर जा रहा है, तो तुम उसे जाने दो ना। परवेज़, मज़दूर को बच्ची के लिए कुछ रकम देना चाहती हूँ, उसके लिए गर्म कपड़े और जूते ही खरीद सके। मेरे पुख्ता इरादे को भांपकर फिर इसरार ने आगे मैदान में गाड़ी रोक दी और बोले, उतरो, आगे गाड़ी नहीं जा सकती। मैं पर्स और शॉल समेत उतर गई और वह कंबल भी साथ ले लिया और उसके लिए लेकर आई थी। कुछ दूर चलकर मैं कच्ची आबादी में पहुंच गई। वह करीबी मकान में चला गया और मैं उनके पीछे घर में घुस गई। इसरार भी हमारे पीछे आए तो वह दरवाजे पर ही रुक गए। एक छोटी सी सहन को पार करके वह शख्स सामने बने हुए कमरे में दाखिल हो गया और साथ में बच्ची भी। मैं गेट पर ही ठहर गई। बीबी, यहाँ क्यों आई हैं आप? फिर उसने चरपाई की जानिब इशारा किया। भैया, मैं बैठने नहीं आई, भाई बाहर खड़े हैं तो आप उन्हें भी बुला लो। बीबी, वह ये कहकर बाहर लपक
मक्का और इसरार को साथ घर में ले आया। उसकी बीवी अपने 5 बच्चों में घिरी हुई थी और मिट्टी की हांडी में सालन निकाल कर उन बच्चों के सामने कटोरों में डाल रही थी। उस शख्स ने हाथ में पकड़ा हुआ शॉपर बीवी की तरफ बढ़ाकर कहा, ले रोटियां मैं तंदूर से ले आया हूँ, सालन भी है। तूने जो तो सुबह मुझे कहा था कि तेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, तो फिर ये रकम कहाँ से आ गई कि तूने हांडी चढ़ा ली और सालन भी मुर्गी का बना लिया है। चल मेहमानों को भी सालन दे, मेहमानों को जितना नहीं है सालन। वह औरत बोली, और ये है कौन जिन्हें साथ लेकर आए हैं? ये तो मैं भी नहीं जानता, तू ही पूछ ले ये कौन है। दरअसल बहन, मैंने अपने घर की बालकनी में तुम्हारी बच्ची को सर्दी में बग़ैर गर्म कपड़ों के नंगे पाँव जाते देखा, तो मैं इसके लिए गर्म शॉल और कंबल लाई हूँ। शायद तुम्हें इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। हाँ बेगम साहिबा, हम ज़रूरतमंद तो हैं, हमारे पास बहुत सी चीज़ों की कमी है, मगर हम सब शुक्र के साथ जी रहे हैं। ये सुबह से मजदूरी पर निकलते हैं और बेटी को भी साथ ले गए थे कि मजदूरी मिली तो इसके लिए चप्पलें ख़रीद लेंगे, मगर ये नंगे पाँव ही आ गई है। शायद मजदूरी नहीं मिली थी, पर उस मजदूरी से मैं ये सालन रोटी ख़रीद लाया हूँ। तूने ही तो कहा था ना कि घर में आज पकाने के लिए कुछ नहीं है। सुबह से बच्चे भूखे थे, मुझसे सब्र ना हो सका। बाहर निकली गली पर एक मुर्गी दीवार के पास बारिश में भीगी खड़ी थी। मैंने झपट कर उसको दबोचा और चादर में छुपाकर घर ले आई, उसको ज़िबा कराया और पका लिया। तुम तो सुनकर इसे चोरी कहोगे ना, मगर भूख सब कुछ करवाती है। तुम मेरे बच्चों को हराम का खिला रही हो, जबकि मैं शदीद सर्दी में मेहनत करके हलाल की रोज़ी कमा कर लाया हूँ। पर तुमने बहुत देर कर दी थी ना, बच्चों से सब्र नहीं हो रहा था, लग रहे थे भूख से, तो क्या करती मैं। तुझे तो मालूम है ना, हमारे पड़ोसी भी हमसे ज़्यादा गरीब हैं, फिर रोज़ कौन किसी को उधार देता है। अरे बारिश हो गई थी तो मेरी बेटी को बारिश से बचाने के लिए मैं एक दुकान के छज्जे तले बैठ गया था, मगर तू तो बेसब्री करती है ना, ज़रा सा भी सब्र न किया तूने। सब्र की भी एक हद होती है ना, उसकी बीवी बोली। वह दोनों हमारी मौजूदगी में आपस में उलझ पड़े थे। मर्द का कहना था कि जो खाना उसकी बीवी ने बनाया है वह हलाल नहीं है, और बीवी मजबूरी जाहिर कर रही थी। उसकी बीवी ने कहा, तभी तो मैंने मेहमानों को सालन देने से मना कर दिया था, वरना सालन है हांडी में। सोचा कि बच्चों की तो मजबूरी है ना, मगर मैं न खाऊंगी और न तुम्हें दूंगी, तो फिर इन मेहमानों को चोरी का रिस्क कैसे दे देती। मियाँ बीवी की गुफ्तगू हमारी आंखें खोल देने के लिए काफ़ी थी। मेरे मियाँ ने उससे कहा कि हम बे औलाद हैं और तुमसे गुर्बत की वजह से इनको पेट भरकर खाना भी नहीं दिया जाता। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम हमें अपनी बच्ची को दे दो और इसके बदले हम तुम्हारी बाकी बच्चों के लिए हर माह राशन दे दिया करेंगे। फिर मैंने बोला, मेरे शौहर का बहुत बड़ा कारोबार है, हमारा अपना घर है, हम तुम्हारी बच्ची को किसी शय की कमी नहीं आने देंगे। तो वह औरत मुझसे कहने लगी, बीबी तुम अपना घर दिखा दो, फिर बात करेंगे। मैंने उन्हें कंबल, शॉल और कुछ रकम दी और कहा, अच्छा तैयार रहना, मैं कल लेने आऊँगी। अगले रोज़ मौसम बेहतर हो गया तो मैं उस मज़दूर के घर गई। उसकी बीवी मेरे साथ आ गई, मेरा घर देखा और बोली, मुझे काम पर रख लो, बच्ची के बारे में बाद में बात कर लेंगे। ठीक है, मैंने उसकी बात सुन ली और कहा, क्या नाम है तुम्हारा? उसने कहा, मेरा नाम जुलेखा है। ठीक है जुलेखा, फिर तुम कल काम पर आ जाना। जी आ जाऊंगी, मगर 4 घंटे से ज़्यादा वक्त नहीं दे सकती, मेरे घर में बच्चे अकेले होंगे। ठीक है जुलेखा, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। यूँ वह रोज़ाना सुबह 10 बजे आ जाती और 2 बजे किचन का काम निपटाकर लौट जाती। मैं उसे बाकायदा से खाना घर के लिए, उसके बच्चों के लिए देती और कहती कि बच्चों को खिला देना। उसने हमारे घर काम किया और फिर उसने अपनी दिल की तसल्ली करके अपनी बच्ची को हमें सौंप दिया।
वही बच्ची जिसे मैंने बाप के साथ सड़क पर जाते देखा था। बच्ची वह 2 माह तक अपने साथ लेकर आती रही थी। बच्ची का नाम रेहाना था। वह मेरे घर और मुझसे अच्छी तरह घुल मिल चुकी थी। मियाँ बीवी ने रेहाना को हमारे सुपुर्द कर दिया। उसकी गोरी रंगत अच्छी वजह की बाइस निखर गई, आंखें रोशन हो गई जैसे 2 चमकते सितारे हों। रेहाना के बाल सुनहरी थे और आंखें नीली, रंगत भी तरोताज़ा गुलाब जैसी थी। वह उम्दा और खूबसूरत लिबास में किसी अमीर घर की बच्ची नज़र आने लगी थी। मेरी दोस्त शाहिदा ने पहले उसे घर में खुद पढ़ाया और फिर स्कूल में दाखिला करा दिया। बोली, अल्लाह ताला ने मुझे एक बेटी अता कर दी तो फिर उसकी शुक्रगुजारी इस तरह हमने की। रेहाना के वालिदैन को हमने एक पक्का कमरा, किचन और बाथरूम बना दिया, पंखे लगवा दिए, पानी का इंतज़ाम करवा दिया। जुलेखा ने भी मेरा काम छोड़ दिया, मगर बच्ची को देखने कभी कभार आ जाती थी। मुझे कहती कि वह फिर रफ्ता रफ्ता अपना आना कम कर देगी ताकि रेहाना आपको अपनी माँ समझने लगे। रोज़ रोज़ मिलने आऊँगी तो वह मेरी आस रखेगी और अपनी भी आपकी भी नहीं बन पाएगी। फिर उसने ऐसा ही किया। रेहाना अब खुले तौर पर मुझे अपना चुकी थी। वह मुझे अम्मी और इसरार को पापा बुलाती है। वह मेरे साथ बहुत खुश है और हम भी उसको पाकर बहुत खुश हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते नहीं थकते। वह बहुत अच्छी बच्ची है। उसके माँ बाप सुकून से हैं, कभी कभी आ जाते हैं, मगर कभी एक दिन के लिए भी रेहाना को अपने साथ घर नहीं लेकर गए। इसरार उनकी काफ़ी माली मदद करते हैं, जिससे उनके दिन फिर गए हैं। रेहाना के बाप ने मजदूरी छोड़ दी है, अपने मोहल्ले में ही किराने की दुकान खोल ली है। शाहिदा की ये सारी बात सुनकर मैं बोली, अल्लाह तुम्हें और उनको इस नेकी का अजर दे। मेरी ये बात सुनकर शाहिदा के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। वह बोली कि बातों में तो वक्त का पता ही नहीं चला। रेहाना के स्कूल से छुट्टी का वक्त हो गया है, मैं अब चलती हूँ। जाने से पहले मुझे कहने लगी, कौन कहता है कि इंसान को वह सब नहीं मिलता जो चाहता है। मांगने से तो सब कुछ मिलता है, पर नीयत नेक होनी चाहिए, क्योंकि दुआओं की कबूलियत का दारो मदार भी इंसान की नेक नियत पर है। और अब मुझे मालूम हो गया है कि मेरी बे औलादी में भी एक मसलियत थी। वह ये कि अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में एक गरीब बच्चे की परवरिश लिखी हुई थी। अल्लाह ताला ने हमारे ही ज़रिए उस बच्ची के बाकी बहन भाइयों को उनके माँ बाप के हालात भी सुधारने थे। मैं बहुत खुश हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे और मेरे शौहर को इस नेक काम के लिए चुना। अल्लाह हाफिज़।